Good morning, students. Namaste. Myself, Seema, Assistant Professor at Jyoti Vidyapeeth University. So, today's our topic of discussion will be ankylosing spondylitis. I think you must have heard this word earlier, but here we are going to get a quick and good review explanation on ankylosing spondylitis. So what are the things we are going to cover up under ankylosing spondylitis? We are going to cover its introduction, like what is ankylosing spondylitis, etiology, the causes, what causes the ankylosing spondylitis, its pathology, then clinical features, diagnosis, treatment, complication, and some reference, as you know, bibliography of it. So, what is ankylosing spondylitis? It's an inflammatory disorder of unknown cause that primarily affects the axial skeleton, peripheral joints, and extra-articular structures. The condition was first fully described in the late 1600s by the Bernard Corner, but skeletals with ankylosing spondylitis are found in Egyptian mummies. The word is from Greek word ankylos meaning stiffening, spondylos means vertebra. So itis means inflammation. Okay, so it's like so ankylosing spondylitis means stiffening of the vertebra with the inflammation. Okay, and due to inflammation. Now, typically, the spinal joints and the pelvis are also affected. Occasionally, other joints such as shoulder, hips are also involved. Eye, bowel problems may occur along with this. Back pain is a characteristic symptoms of the ankylosing spondylitis. And it often comes and goes. Stiffness of the affected joints generally worsen over time. So as the time passes, the stiffness goes on progression. Okay, and the pain will also increase with time. If we will see the prevalence, then it is 0.1 to 1% of the population, and if we will see the man is to women's ratio, then it is almost 3:1. So men's are like 3 times more affected than the women's, and it commonly develops between the age of 15 to 30 years. So it starts from the age of 15 to 30 years, and then it goes on along the life. Now, etiology. So the exact cause is unknown, as I have told in the introduction, in the definition only, that its etiology is unknown. But there has been found a strong correlation between HLA-B27 and this disease. Okay. Then we will discuss the pathology. So there are two basic lessons. यहाँ पे basically दो चीजें होती है. सबसे पहले क्या होता है? साइनोवाइटिस ऑफ द डायआर्थ्रोडियल जॉइंट्स होती है. उसके बाद फिर इन्फ्लामेशन एट द फाइब्रोसिस जंक्शन ऑफ सिंडास्मेटिक जॉइंट एंड टेंडन्स. तो यहाँ पे पैथोलॉजी में दो प्रोसेस होती है. क्या होती है? साइनोवाइटिस हो जाती है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो साइनोवियल हमारा पूरा का पूरा एरिया होता है डायआर्थ्रोडियल जॉइंट का, उसकी साइनोवाइटिस होती है. और इन्फ्लामेशन क्या होता है? फाइब्रोसिस जंक्शन ऑफ द सिंडास्मेटिक जॉइंट्स एंड टेंडन्स. ओके, सो मोस्टली कहाँ हो रहा है हमारा? सैक्रोइलिक जॉइंट पे, वर्टिब्रल फैसेट जॉइंट्स पे, वहां की आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और पेरिआर्टिकुलर बोन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है. उसके अलावा फिर हमारे जो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स है, लाइक हमारा जो रिब केज है, जो हमारे रिब केज क्या कहते हैं, वर्टिब्रा पे आके अटैच होता है, उसको हम लोग कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट बोलते हैं. सो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स आर आल्सो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व. ठीक है. उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमारा जो इन्फ्लामेशन होता है फाइब्रोसिस जंक्शन का अफेक्ट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, सेक्रोइलिक लिगामेंट इन्वॉल्व हो जाता है, सिम्फिसिस प्यूबिस है, मेनिब्रम स्टर्नी है, एंड क्या कहते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं. अगर हम पैथोलॉजिकल चेंजेस जो ऑकर होते हैं थ्रू आउट द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के प्रोसेस में, अगर हम उसकी बात करें तो 3 स्टेजेस में हम उसके पैथोलॉजिकल चेंजेस को क्लासिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्टडी कर सकते हैं. पहला स्टेज क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे आइटिस वर्ड है, सो इन्फ्लामेशन एक मेजर सिम्टम होगा, मेजर क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल प्रोसेस होगा. सो इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो बेसिक फाइंडिंग्स होती है कि सेल इन्फिल्ट्रेशन, ग्रेन्युलेशन ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, इरोजन ऑफ द एडजेसेंट जॉइंट.
जॉइंट। देन इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे रिजॉल्व होगा वैसे वैसे वहां पे क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट हो जाएगी ग्रेन्युलेशन टिश्यू की बाय द फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जब फाइब्रस टिश्यू आ जाएगी तो फिर अल्टीमेटली लेटर ऑन जाके उसने ऑसिफाई हो जाना है, क्योंकि ये हमारे बोनी एरिया पे जंक्शंस पे टेंडन्स एरिया पे है। सो वहाँ पे हमारे ऑस्टियोइड्स एंड ऑस्टियोब्लास्टोमास वगैरह जो हमारे ऑस्टियल सेल्स है वो प्रेजेंट है। तो अल्टीमेटली फाइब्रस टिश्यू का वहाँ पे क्या कहते हैं ऑसिफिकेशन हो जाना है, और उसी ऑसिफिकेशन प्रोसेस में एनकाइलोसिस करनी है, लाइक स्टिफनिंग करनी है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है। इफ मेनी वर्टिब्रास आर इन्वॉल्व, लाइक अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बहुत सारे वर्टिब्रास इन्वॉल्व हो जाते हैं तो स्पाइन जो होती है वो कम्प्लीटली रिजिड हो जाती है, जिसको हम लोग बैम्बू लाइक स्पाइन भी बोलते हैं। सो इसको बैम्बू डिजीज भी बोला जाता है। ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द बैम्बू साइन, द बैम्बू डिजीज, हमारी सारी वर्टिब्रास अगर इन्वॉल्व होने लग जाती है तो वो सारी ऑसिफाई होके फिर क्या कहते हैं वो बैम्बू साइन या प्रेजेंट करती है। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइक आप पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो कि हेल्दी स्पाइन हमारा कैसा दिखता है। देन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जब इंफ्लेमेटरी फेज है, देन हमारे डिस्क इन्वॉल्व है, जो जो पॉइंट जो एंड टू एंड सरफेस है वर्टिब्रास की वो इन्वॉल्व है, आप रेड साइन से देख सकते हो। देन जब क्या कहते हैं हमारा हीलिंग फेज एंड फ्यूजन का फेज होने लग जाता है, ऑसिफिकेशन होने लग जाती है, तो आप देख सकते हो डिस्क बिल्कुल ही लाइक गायब सी होती जा रही है, बहुत कम पोर्शन डिस्क का बचा है, बोन जो है वो जो गैप है वो डिक्रीज हो गया है, अल्टीमेटली जो बोन है वो आपस में चिपक रही है। सो यहाँ पे ऑसिफिकेशन होती है। ओके, अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स की हम अगर बात करते हैं तो जो डिजीज है, क्योंकि इसकी इटियोलॉजी कुछ नहीं है तो इंसीडियस है, ये अचानक से हो जाता है, जस्ट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ बॉडी में और कुछ वही HLA-B27 मैंने बताया कि उससे रिलेशन होता है, तो ड्यू टू सम रिएक्टिव किसी न किसी तरह की चेंजेस की वजह से बॉडी में ये एक्टिवेट हो जाता है, ये इन्फ्लेमेशन, ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है एंड उसके बाद डिजीज जो होता है वो प्रोग्रेस करने लग जाता है। तो ए टीनेजर और यंग एडल्ट कंप्लेंट्स ऑफ बैक एक स्टिफनेस रिकरिंग एट इंटरवल्स ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। सो जो भी चाइल्ड होगा, जो भी लाइक टीनेज होगा या यंग एडल्ट होगा, तो बार बार बैक पेन होना, स्टिफनिंग होना और लाइक थोड़े थोड़े टाइम में होता रहेगा ये। ओके, सिम्टम्स आर वर्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर इनएक्टिविटी, जैसे ही पर्सन रेस्ट पे जाता है तभी सिम्टम्स वर्स होते हैं और ग्रेजुअली पेन एंड स्टिफनेस बिकम कंटिन्यूअस एंड अदर सिम्टम्स बिगिंस टू अपीयर। ओके, सो अदर सिम्टम्स क्या क्या होंगे? जनरल फटीग है, पेन है, स्वेलिंग है जॉइंट्स की, टेंडरनेस एट द इंसर्शन ऑफ द एचलीज टेंडन, इंटरकॉस्टल पेन एंड टेंडरनेस, ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम पॉस्चर की बात करें कि पॉस्चरल क्या चेंजेस होते हैं, तो लंबर लॉर्डोसिस का जो नॉर्मल पॉस्चर है वो लॉस होने लग जाता है, इंक्रीज थोरेसिक काइफोसिस होने लग जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे स्पाइन को ये अफेक्ट कर रहा है। और स्पाइन में इंफ्लेमेशन होने के बाद जब फाइब्रोसिस हो रही है, ऑसिफिकेशंस हो रही है, तो जो नॉर्मल अलाइनमेंट है, जो नॉर्मल कर्वेचर है हमारी, वो चेंजेस होंगी। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या क्या दिखेगा? लंबर लॉर्डोसिस का लॉस दिखेगा, थोरेसिक काइफोसिस इंक्रीज्ड दिखेगा, हमें फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द नेक दिखेगा, अपराइट पोस्चर और बैलेंस जो है वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, उसको मेंटेन करने के लिए हिप एंड नी जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स दिखेंगे, तो अल्टीमेटली गेट भी अल्टर्ड होगा and in late case they may become fixed deformity और ultimately later on stage में जाके फिक्सिंग हो जाएगी डिफॉर्मिटी की। ये सारे postures जो हैं वो एकदम टिपिकली दिखेंगे ऑब्जर्वेशन से। स्टार्टिंग में चेंजेस रहेंगे कि आप लेट रहे हो या बैठ रहे हो तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बची हुई है या कुछ मूवमेंट्स बची हुई है, बट जैसे जैसे एज होती जाएगी, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी, ये सारी डिफॉर्मिटीज जो है वो फिक्स हो जाएंगी। ओके, ना हमें और क्या देखने को मिलता है? स्पाइनल मूवमेंट्स अगर हम देखें तो सारे डायरेक्शन में स्पाइनल मूवमेंट्स लॉस होगा, बट एक्सटेंशन जो है वो सबसे पहले लॉस होता है। ओके, एंड देन अगर हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें, अगर हमारा थोरेसिक केज वाला एरिया इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि चेस्ट की मोबिलिटी भी, क्योंकि अगर वर्टिब्रल जो हमारा कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है वो इन्वॉल्व हो रहा है तो प्रॉपर चेस्ट की एक्सपेंशन, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के टाइम पे जो चेस्ट की मूवमेंट होती है, जो चेस्ट इंस्पायरेशन के टाइम पे एक्सपेंड करता है, वो ऑब्वियस सी बात है वो लॉस दिखेगा, हमें डिक्रीज दिखेगा। देन हमारा पेरिफेरल जॉइंट्स है, पेरिफेरल जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगर वो भी इन्वॉल्व होता है तो इन्फ्लेमेटरी साइंस दिखेंगे, आर्थराइटिक चेंजेस दिखेंगे, स्वेलिंग, टेंडरनेस, फ्यूजन, लॉस ऑफ मोबिलिटी, ये सारी चीजें दिखेंगी। और अगर हम एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो वही जनरल फटीग है, लॉस ऑफ वेट है, ब्लैडर एंड बाउल प्रॉब्लम, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एर्टिक क्वालिटीज, ये सारी चीजें बहुत बार देखने को मिलती है।
ओके अगर हम डायग्नोसिस की बात करें अगर, तो मॉडिफाइड न्यूयॉर्क क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो यूज होता है। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो देखे जाते हैं कि लॉन्ग बैक पेन अगर 3 मंथ से ज्यादा है, और लंबर मूवमेंट जो है वो सेजाइटल और फ्रंटल पेन में लिमिटेशन हो रही है, लाइक एक्सटेंशन लॉस हो रहा है उसका चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो रिलेटिवली क्या कहते हैं लॉस हुआ है, और सैक्रोएलाइटिस सैक्रोइलेक जॉइंट की क्या कहते हैं बायलेटरल साइड उसकी क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन है, या फिर क्या कहते हैं हमारी यूनिलेटरल भी सैक्रोइलाइटिस है। तो वहां पे हम ये सोचते हैं, वहां पे फिर हम और एक्सटेंसिव डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं कि ओके अगर ये सारी क्राइटेरियाज मिल रही होती है तो इट्स अ डिफरेंट डायग्नोसिस ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। देन अगेन हम एक्सरे लेते हैं सैक्रोइलेक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन एंड इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए, जॉइंट की मोबिलिटी वगैरह को देखने के लिए, फिर हम HLA-B27 का टेस्ट कर देते हैं कि इज देयर एनी मार्कर ऑफ HLA-B27। तो उसके बाद हम कंफर्म करते हैं। फिर हम एक्सरे में क्या क्या देखते हैं, इरोजन एंड फजीनेस ऑफ सैक्रोइलेक जॉइंट देखेंगे, फ्लैटनिंग देखेंगे हम, जो हमारा कर्वेचर है उसकी फ्लैटनिंग होगी। उसके बाद फिर जो लिगामेंट्स है सैक्रोइलेक जॉइंट के उसकी कैल्सिफिकेशंस वगैरह दिख सकती है। ऑसिफिकेशंस वो लेटर ऑन स्टेज में दिखता है। लंबर लॉर्डोसिस जैसे मैंने बोला पहले की क्लिनिकल फीचर में लंबर लॉर्डोसिस लॉस होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी जो होती है वो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज में कॉमन हो जाती है। You can see an early sign in squaring of the lumbar vertebra. So जो हमारी lumbar vertebra की जो एक राउंडिंग होती है, कर्वेचर होता है, यू कैन सी कि वर्टिब्रा जो होती है वो फ्लैटन होती जा रही है, बिल्कुल स्क्वायर शेप में हो जा रही है, एक कर्वीनेस होती है, राउंडिंग होती है वर्टिब्रा। लेकिन आप देख रहे हो कि इरोजन हो के बोन का, तो ये अर्ली साइन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। देन यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं ब्रिजिंग हो चुकी है, बोनी ब्रिजेस बन चुके हैं। एंड देन अगर हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात करें, मैंने पहले बताया कि ESR CRP वो एक रिएक्टिव, अगर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का स्टेज है, तो ESR एंड CRP हेल्प अस टू सी द एक्टिव फेज ऑफ द डिजीज। NHLA-B27 को हम देखेंगे। उसके बाद हम स्कॉबर्स टेस्ट है, गैलेंसन टेस्ट है, SLR टेस्ट है, पम्प हैंडल टेस्ट है, फ्लेचेस टेस्ट है, ये सारे टेस्ट हम मसल्स की एंड जॉइंट्स की मोबिलिटी वगैरह को देखने के लिए यूज करते हैं, और न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट कितनी है उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट के अगर पार्ट देखें, ट्रीटमेंट जो है हमारा अगेन हमारा क्योंकि इन्फ्लामेटरी चेंजेस है तो एंटी इन्फ्लामेटरी एनसेट्स वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद फिर जो TNF इनिबिटर्स होते हैं जो सेवरल डिजीज में यूज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को क्या कहते हैं इनिबिट करने के लिए, वो सारे यूज होते हैं। देन अगर लेटर ऑन स्टेज में प्रेजेंट हो रहा है, अर्ली एज में ही क्या कहते हैं प्रोग्रेस होकर डिजीज उसकी लाइक पैम्बू स्पाइन या ऐसी कंडीशंस में आ गया है, तो ऑपरेशन से करेक्ट करने की कोशिश और रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं मोबिलिटी को। और हिप वगैरह या अदर जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह करने की भी कोशिश करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह करने की भी कोशिश करते हैं। ओके, सो दीज आर लाइक बेसिक प्रोसीड्यूर जो